Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Before I start today's set, I just want to make one point very clear that I am recording this set at 2 a.m. So a lot of efforts go into all this. First, I have to go through the set, I have to download the PDF, and I have to do all 100 other things so that 100, 200 students can watch this series and can benefit as much as you want to from the good level sets, good cat level sets, right? So obviously I want to continue this series till the cat, but a lot of things depend on your response also. So if you are solving, if you are consistently following this series, please do like the video and please comment something under this video so that I get to know that there are people who are actually waiting and who are actually waiting every day for these kind of videos, for these kind of solutions. So अभी स्टेट को स्टार्ट करते हैं, है ना? पहले आपको खुद से सेट करना है. So this is the main information, this is the first question, right? Now this is the second question. Okay, so this is the third question, this is the fourth question, right? And this is the fifth question, right? The options for the fifth question are something like this. Okay, so now let's go back to the ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा. So let's start with this information. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, given below is the data regarding sales across three segments, LCV, HCV and passenger vehicles in a district XYZ from 2019 to 2022. The minimum number of LCV sold in any year was 40 units and the maximum number is something, right? So let's make a table. Let's create this table. क्या बोल रहा है, LCV, HCV and passenger vehicles. So there are three types of vehicles: LCV, HCV and passenger vehicles. The minimum number of LCV sold in any year, right? So 2019 से 2022 तक का आपके पास डेटा है. That is 19, 20, 21 and 22. The minimum number of LCV sold in any year was 40 units and the maximum number of LCV sold in any year was 75 units. So LCV का range है 40 to 75. The minimum number of HCV and passenger vehicles sold in any year was 30 units. So इसका भी 30 units minimum and इसका भी 30 units minimum. The sale of HCV in 2020 was 60 units. HCV in 2020 was 60 units, which was more than the sale of HCV in any other year. So which was more than, so this value must be less than 60, this value must be less than 60 and this value must be less than 60. The maximum sale of passenger vehicle in any year was 40. For passenger vehicle the maximum sale was 40. So I get to know that out of these four values, one value must be 30, other value must be 40. Now let's focus on these points. HCV के बारे में क्या बोला है, the sales of HCV in each year was a distinct multiple of 10. Sale of HCV in each year was a distinct multiple of 10. So if I have to put distinct multiple of 10 here, so minimum value is 30, next best value is 40, next best value is 50 and the maximum is 60. So can I say here 30, 40, 50 should be here? Anything from 30, 40, 50 will be here, anything from 30, 40, 50 will be here and anything from 30, 40, 50 will be here. So मुझे यहाँ पे 30, 40 and 50 anyhow arrange करना है. This I get to know. LCV के बारे में क्या बोल रहा है, the sale of LCVs showed a strictly increasing trend in these 4 years. Okay, strictly increasing मतलब बढ़ता ही जा रहा है. The other two segments do not show any such trend. The total sale of LCVs in the 4 year was 215. So LCV का total sale 4 year में कितना है? That is 215. So I can say कि ये total sale 215 है and there is an increasing trend. There is an increasing trend. सो इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी. सो 75 एंड 40 ऑलरेडी मेरे पास आ गए, तो बाकी टोटल मेरा कितना बचा, बाकी इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 90.
है ना, इन दोनों का टोटल मेरा 90 होना चाहिए। सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका टोटल मेरा 90 होना चाहिए। नहीं, नॉट 90, शुड बी 100। सो इनका टोटल मेरा 100 होना चाहिए, है ना, इसका और इसका टोटल मिला के 100 होना चाहिए, ठीक है। एंड देर इज नो सच ट्रेंड इन एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। तो एचसीवी में तो ट्रेंड हो ही नहीं सकता ये वाला। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि पैसेंजर में ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो टोटल सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स इन द गिवन 4 year वाज द सेम एज द टोटल सेल इन 2021 across the three segments. In 2021 across the three segments, let's say if this value is A, right, and this value is something 30, 40, 50, and this value is, let's say, B, this value is C. So here also I should get A plus B plus C, right? So what does that mean? That the sum of this and this must be equal to A plus B, because C is already there, right? So let's see what we can do about this information, right? The sum of sales of passenger vehicles in 2019 and 2021, passenger का 2019 में and 2021, let's say this is P, so P plus C was equal to the sum of sales of passenger vehicles in 2020 and 2022, 2020 and 2022. So this value is, these two values is A plus B plus C minus, अगर ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो टोटल में से इसको और इसको माइनस कर दूंगा। So C से C cancel, right? So I can say 2P plus C is equal to A plus B. ये मेरा यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गया, 2P plus C is equal to A plus B, और I can say P की वैल्यू इज A plus B minus C by 2, इसकी वैल्यू इज A plus B minus C by 2, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो नोन दैट द सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 4 years was इक्वल। तो कोई 2 साल ऐसे होंगे जहां पे पैसेंजर व्हीकल की सेल इक्वल हो जाएगी, राइट? वो कौन से ईयर्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे, राइट? वो कौन से ईयर्स हैं हमें वो भी फिगर आउट करना पड़ेगा। यहां तक समझ आया सभी को? क्लियर है जितना? ठीक है, और कुछ बोला है? सो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड इन द 4 years अक्रॉस द 3 segments। सो टोटल नंबर व्हीकल्स फाइंड करने, राइट? अब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहाँ पे देयर कुड बी मल्टीपल केसेस, ओके। अब देखो पैसेंजर व्हीकल्स में आपको पता है कि एक वैल्यू 30 होगी और एक वैल्यू 40 होगी और कुछ दो वैल्यूज और होंगी, और इसमें से आपको ये भी पता है कि कोई दो वैल्यूज इक्वल होंगी, है ना? आपको यहाँ पे बोला हुआ एग्जैक्टली 2 of the 4 years was इक्वल, ठीक है। तो या तो मैं बोल सकता हूँ 30 दो बार आएगा, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको केस बनाने पड़ेंगे कि लेट से या तो 30 मेरा दो बार आ रहा है पैसेंजर में, एक बार 40 आ रहा है और एक बार कुछ और आ रहा है, या फिर दो बार 40 आ रहा है एक बार कुछ और आ रहा है, या फिर 30 भी सिंगल टाइम 40 भी सिंगल टाइम और बाकी जो दूसरी वैल्यूज है एक्स एंड एक्स वो ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 30 30 40 एक्स, 30 40 40 एक्स, 30 40 एक्स एक्स, तो इन तीनों में से कोई एक केस आएगा यहाँ पे, है ना। इन तीनों में से कोई एक केस मेरा आएगा, राइट। एंड एक्स की वैल्यू अगर कोई भी आएगी कहीं भी, दैट मस्ट बी बिटवीन 30 एंड 40, राइट, बिकॉज 30 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 40 इज द मैक्सिमम वैल्यू। Understood. So now let's start with each case. For example, let's first start with this case 30 30 40x. So if I go with this case, that is 30 30 40x. So तो यहाँ से केस बनाने से पहले ना तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, है ना। लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी एक्सप्लेनेशन आई एम रीअरेंजिंग दिस पार्ट। तो इसको मैं ना 30 30 एक्स एंड 40 लेता हूँ। सो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको लेता हूँ 30 एक्स 40 और 40 का केस, और इसको लेता हूँ 30 एक्स एक्स 40 का केस, ठीक है। सेम ही केस है बट ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहां से आपको और अच्छे से समझ आएगी चीजें। तो ये चार वैल्यूज या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ये हो सकती है। नाउ यू नो कि सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, ये दो का सम, है ना, ये दो के सम के बराबर होगा। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन वैल्यू ऑफ 19 एंड 21। 19 और 21 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अब 19 और 21 की क्या मैं वैल्यू 30 30 ले सकता हूं?
पहले केस फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, क्या मैं वैल्यूज 30-30 ले सकता हूं? अगर ये 30-30 ले ली तो ये 60 आ जाएगा, और दूसरा आएगा x+40, है ना? सो दैट मीन्स x की वैल्यू 20 आनी चाहिए, बट x मस्ट बी ग्रेटर देन 30, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? दो मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू दो मैक्सिमम वैल्यूज, तो वो तो लॉजिकली दिख रहा है, वो तो हमें लॉजिकली दिख रहा है। 30x का पेयर क्या 30 और 40 के बराबर हो सकता है? दैट मीन्स 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू 40 आ रही है, बट x की वैल्यू 40 आ गई तो यहाँ पे 40-40 टू टाइम्स रिपीट हो गया, 30-30 टू टाइम्स रिपीट हो गया, दैट वायलेट्स अवर कंडीशन, है ना? 30-30 नहीं आ सकता, 30x नहीं आ सकता, और 40x देख लगा के देख लो। अब 40x में क्या कर रहे हो आप? दो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल कर रहे हो दो मिनिमम वैल्यू के, दो मैक्सिमम वैल्यू क्या दो मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स ये पूरा केस ही नहीं आएगा, पहला केस ही खत्म हो गया, पहला केस ही खत्म हो गया। दूसरे केस पे आ जाओ, दूसरा केस क्या है? अब देखो यहाँ पे भी 30x पकड़ूंगा, उसको 40-40 के इक्वेट करूंगा तो कोई पॉइंट नहीं है ना? मुझे दो मिनिमम या दो लार्जेस्ट नहीं लेनी, है ना? दोनों मिनिमम ले लो तो वो दोनों लार्जेस्ट के बराबर तो आ ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पे 30x लेने का मतलब नहीं है ना? यहाँ पे ले लो 30 एंड 40 इन एनी ऑर्डर, तो ये आ गया 70, 70 इज इक्वल टू x+40, बट यहाँ पे x 30 आ गया, तो 30 यहाँ पे रखोगे तो वो अगेन टू टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो वो टू टाइम्स रिपीट वाली प्रॉब्लम वहां पे भी आ जाएगी, है ना? तो अगेन यहाँ पे ये केस में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, है ना? अब लेते हैं लास्ट केस, दैट इज 1921। लास्ट केस में देखते हैं, लास्ट केस क्यों सेटिस्फाई होगा, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट दो बार कौन हो रहा है? x, तो यहाँ पे आप इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, लेट्स से 30 प्लस एक्स को इक्वल रख सकता हूँ क्या मैं 40 प्लस एक्स के? क्या 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या x प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 हो सकता है? x प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 70, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 35, और ये इनके बीच में भी आ रहा है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है ना? मतलब एक वैल्यू आपको पता लग गया, चारों वैल्यूज 30, 35, 35 एंड 40, 30, 35, 35 एंड 40, तो एक पेयर आपका ये बनेगा और एक पेयर आपका ये बनेगा, ठीक है? तो ये दो, एक दो चीजें यहाँ पे आएगी, दो चीजें यहाँ पे आएगी, समझ गए? इतना क्लियर है सभी को? एनी डाउट? तो अब आपका टोटल सेल क्या हो गया? 35 प्लस 35 70 प्लस 70 140, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 140। ये क्लियर है ना? अगर ये 140 आ गया तो इसका ऐसे सम भी क्या आ जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी 140, है ना? दिस विल ऑल्सो बी 140। अंडरस्टूड, है ना? अब देखो ये 30-40 का पेयर है और ये 35-35 का पेयर है ना? तो अगर मैं 19 और 21 की बात कर रहा हूँ, लेट से पहले इजी वाला केस ले लेते हैं कि दोनों वैल्यू, ये भी 35 है ये भी 35 है, अगर सी 35 है और ये भी 35 है, तो कैन आई से ए प्लस बी माइनस सी दैट इज 35/2 इज इक्वल टू 35, दैट मीन्स ए प्लस बी, so this is 35, right? So 70, this is 105, right? So this seems possible कि 35-35 यहाँ पे आ जाए, है ना? और 30 और 40 यहाँ पे आ जाए। अब दूसरा केस भी करके देख लेते हैं, है ना? 35-35 वाला केस पॉसिबल है, 35-35 वाला केस 1921 में पॉसिबल है। अब 1921 का दूसरा केस रन कर लो, 30 और 40, और एक बार 40 और 30 वाला केस, है ना? अगर ये रन करोगे, है ना, और इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी आ रहा था 105, ठीक है? वो तो आ ही रहा है। अब 30-40 रन करोगे तो सी की वैल्यू, अगर ये केस लेता हूं तो 21 के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू 40 है ना? अगर सी की वैल्यू 40 है तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 100, तो ये आ गया 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 60/2, सो दिस वैल्यू मस्ट बी 30, तो 19 की वैल्यू 30, तो ये भी पॉसिबल है। अब ये आ जाते हैं 40-30 वाले में, है ना? 40-30 अगर सी की वैल्यू 30 लूं और ए प्लस बी की वैल्यू 110 लूं, ठीक है? तो 110 माइनस 30 दैट इज 80/2 40, सो ये 40, ये सारे केस ही पॉसिबल है ना? ये सारे केस ही हमारे पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये केस पे वर्क करोगे तो यहां से अब आगे प्रोसीड नहीं कर सकते।
ठीक है, अब आगे प्रोसीड कैसे करना है वो देखो। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि इन तीनों का सम 140 है ना, इन तीनों का सम 140 है। अब सी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो देख लो, है ना, है ना। ए प्लस बी की वैल्यूज पे फोकस कर लो। लेट से ए प्लस बी या तो हो सकता है 105, है ना, या फिर हो सकता है 100, या फिर हो सकता है 110, है ना। ए प्लस बी या तो 105 या 100 या 110। ये कब कब होगा, ये C35 पे होगा, ये C40 पे होगा और ये C30 पे होगा, ऐसा। तो a प्लस बी अगर 105 है या a प्लस बी 100 है, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पेयर्स बनते हैं, है ना, क्या क्या हमारे पेयर्स बनते हैं। अब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो मिनिमम पेयर यहाँ पे 50-50 का बनता, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कह सकता हूँ ये वैल्यू थोड़ी सी 50 से कम होगी और ये 50 से ज्यादा होगी। सो a की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 50, मस्ट बी ग्रेटर देन 50 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, इतना समझ आया, है ना। एंड a की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 75, है ना, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस खत्म हो जाएगा मेरा। समझ गए। अब यहां से देखो बी की वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम ट्राई करके देखते हैं, है ना। अब आपको पता है कि जो मेरी बी की वैल्यू है या तो वो 30 आएगी या 40 आएगी, 50 आएगी, है ना। अब अगर लेट से बी की वैल्यू 30 है, तो इस केस में ए की वैल्यू पे ध्यान देना, क्या आएगा, ए की वैल्यू 75, 70 या फिर 80। ठीक है, अब अगर ए की वैल्यू 75 आ गई, क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे 75 नहीं आ सकता। क्या ए की वैल्यू 70 पॉसिबल है, अगर यहाँ पे 70 आ गया तो यहाँ पे 30 आएगा, बट यहाँ पे 40 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये भी नहीं पॉसिबल। और अगर यहाँ पे ए 80 आ गया तो यहाँ पे 20 आएगा, तो बट ये 40 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी नहीं पॉसिबल। दैट मीन्स बी की वैल्यू 30 यहाँ पे नहीं आ सकती। तो जब बी की वैल्यू 30 नहीं आ सकती, वी विल चेक फॉर बी की वैल्यू 40। बी की वैल्यू 40 पे क्या आएगा, ए की वैल्यूज देखो, 65, 60 एंड 70। अब ये 65 आ गया, अगर ये 65 आ गया तो ये कितना आएगा, 35, नॉट पॉसिबल। ये 60 आ गया तो ये 40 आएगा, विच इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस, नॉट पॉसिबल। अगर ये 70 आ गया तो ये 30 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी केस खत्म। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू मस्ट बी 50 ओनली। जब बी की वैल्यू 50 आ गई, तो आपको क्या पता लग गया कि ए की वैल्यू या तो आ सकती है मेरी 55 या फिर 50 एंड या फिर 60, है ना। अब यहाँ पे 60 पुट करोगे तो ये 40 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 50 पुट करोगे, ये 50 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस है, दैट इज 55। यहाँ पे 55 पुट करो तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे पता लग गया बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 55, है ना। और सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 140 माइनस 50, 90, 90 माइनस दिस 35। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आ गया सी की वैल्यू 35। समझ गए, है ना। और अगर यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे भी 35 आ गया, यहाँ पे भी 35 है। अब देखो 50 प्लस प्लस 100 और 140 टोटल बन गया, राइट। अब ये 60 है, ये 50 है, यहाँ पे आपको 30 और 40 एडजस्ट करना है, यहाँ पे 30 या 40 एडजस्ट करना है, यहाँ पे 30 या 40 एडजस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, 30 एंड 40, 30 एंड 40 इन एनी ऑर्डर, 30 एंड 40 इन एनी ऑर्डर। सो यही आपका पूरा सेट है ना, यही आपका पूरा सेट है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The total number of vehicles sold in 4 years across the three segments in 4 years। 4 years में देखो ये 140 है, ये 215 है, 215, 140, और इसका टोटल क्या होगा, 60 प्लस 30 90 प्लस 40 130 प्लस 50 180। तो ये तो बहुत जल्दी आप फाइंड कर सकते थे, पूरा सेट सोल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। तो 535 शुड बी योर आंसर, 535 शुड बी योर आंसर। सेकंड पे आ जाओ, हाउ मेनी पैसेंजर व्हीकल्स वर सोल्ड इन 2019। पैसेंजर को 2019 में 35 शुड बी द आंसर, 35 मस्ट बी योर आंसर।
ठीक है जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड अक्रॉस द थ्री सेगमेंट इन 2022, 2022 में सारे व्हीकल को मिला के क्या आएगा 75। अब देखो सेवन, तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, है ना, 30 30 30 40 40 30, तो तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये तो आई थिंक सही नहीं लग रहा, बट लेट्स सी। ये तो सही नहीं लग रहा, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड अक्रॉस द थ्री सेगमेंट इन 2020, 2020 में 60, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो ये वाला या ये वाला, तो ये भी सही नहीं है। सो माय आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू। मस्ट बी ट्रू पूछा ना, तो नाइदर वन नॉर टू। What best can be concluded about the sale of LCVs in the year 2020? LCVs का 2020 में सेल क्या था, LCVs का 2020 में सेल was 45, so it was 45 should be the answer. फिफ्थ में देखते हैं क्या बोल रहा है, if for exactly 2 years the sale of two three segments was equal, है ना, if for exactly 2 years the sale of two of the three segment was equal, which of the following is the correct combination of the years? Okay, two of the three segments, 2019 और 22, तो 40 40, ये तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट तो सही लग रहा है ना, फर्स्ट तो सही लग रहा है मुझे, ये वाला तो पॉसिबल है ना। टू सेगमेंट का इक्वल करना है, 19 और 20 में देख लो। 19 में देखोगे तो 40 40, ये सही कर दोगे। 20 में देखो, 20 में तो 45 60, ये तो नहीं हो पाएगा, तो 20 वाला तो नहीं हो पाएगा। 2020 एंड 2022, 20 वाला तो हो ही नहीं पाएगा ना, तो 20 वाला और काट दो, तो ओनली वन शुड बी योर आंसर, ओनली वन शुड बी योर आंसर। सो बहुत ही प्यारा सेट था, जो सारा टाइम आपको इसमें लगना था वो लगना था ये टेबल बनाने में, और मल्टीपल केसेस बन रहे थे, है ना। तो ऐसा सेट या इससे थोड़ा सा हल्का सेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट डेफिनेटली इट वॉज वर्थ डूइंग, है ना, और लर्निंग यहाँ पे आपकी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।